देन उसके बाद जो वैट था अगेन प्रोजेक्टर के थ्रू दे डिस्प्ले अ टॉपिक समहाउ द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ माई अंडर ग्रेजुएशन वॉज 2016 जबकि इट इज 2019. दिस वॉज वन क्वेश्चन दैट एवरी वन वॉन्टेड आंसर्स टू. थिंग इज कि नाउ दैट द रिजल्ट्स आर आउट, 2 राउंड्स हो चुके हैं, इन दोनों में हम दोनों Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Neha and in today's video I'm going to take you through my KJ Somaiya experience. So without further ado, let's dive right into the video. When I entered, I was just looking at the campus. It's quite massive. Whenever you think of Mumbai के campuses or just colleges, you think of that one building. Well, लिंकर का भी एक building है. मेरा जो college था HR college वो भी एक building था. But ये एक proper campus है. It's like a proper university. So nice. I could see like a nice big field जहाँ पर लोग football खेल रहे हैं. Apparently a lot of other colleges had come as well. उनका competition चल रहा था तो धूप में वो लोग इतना खेल रहे थे and I'm just looking around admiring the views and I'm like wow, I can't believe this is in Mumbai. Now the first order of business was document verification again. So हमें classroom में वो लेके जाते हैं. We sit over there and then we just make sure that our papers are set and then slowly they take you in batches and वो आपको 4th floor पे लेके जाते हैं I think जहाँ पर auditorium है. So उनके auditorium में you go, you sit. I think the longest time I've spent at that college was in the auditorium. So of course you have your document verification. But they give you a number, like group number, whatever that you have to remember. So post your document verification check. उनका जो वो है right seating, उनके side में एक ऐसा table type भी है. So that is great because literally after the orientation you have your VAT which is your written ability test and इसके पहले उन्होंने हमें coffee दी थी. So they had a coffee service and while the document verification was happening you could just have nice coffee, feel a little bit more energized and वो बहुत ही sweet gesture था. Again, not something that I saw anywhere including GIM. The entire orientation happened and I really liked how they are changing their lookout on the way education is at KJ, so they're like, we want to be a transformative college and the way they've thought it through, the structure, the curriculum जो मुझे बता रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा well thought through लगा and I loved how they were like, we want to be a T college not a B college. So that really differentiated and now I understand कि KJ Somaiya का brand name इतना strong क्यों है because apart from the placements that they used to offer and their alumni network, it is also how they're upgrading their education, at least from theory what I could tell. अभी practically हमने तो कुछ किया नहीं है but from whatever you could see ऐसा था कि हाँ मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है एंड उन्होंने ना टिपिकल चीज़ें नहीं दिखाई अपनी ओरिएंटेशन में. दे एक्चुअली शोड कि अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई एंड ऑल कि कैसे बच्चे अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हो रहा है, कैसे माइंडसेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड कैसे उनके जो क्रेडिट सिस्टम है इट इज़ सो कि आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो विच इज़ सो स्वीट एंड सो मतलब थॉट थ्रू. स्वीट क्या बोल रही हूँ, इट इज़ एक्चुअली जेन्युइनली very thought through I feel like. They also called alumni which was really nice and all of them gave their little 2 cents on how you should approach the interview but a general thing is ki just be yourself, that's about it. तो yeah, don't worry, I'm sure you're going to do fab. Then उसके बाद जो VAT था again projector के through they display a topic. You have some 15 minutes, 300 word essay you have to write. pen and paper आपको देते हैं. उन्होंने अपने इसमें लिखा था कि आप एक पैड कैरी कर लो बट और मैं लेके भी गई थी बट ज़रूरत नहीं थी कुछ साइड में वो टेबल जैसा था एंड यू कुड जस्ट राइट इट थ्रू एंड दे हैड मेंशन कि हम लोग मार्क्स किस बेसिस पे देने वाले हैं. सो योर ग्रामर, फ्लो ऑफ थॉट, कोहेरेंस एंड वोकैब पे मेनली जो था आपके पॉइंट्स निर्भर करते थे एंड उसके बाद द स्टूडेंट वॉलंटियर्स टेक द पेपर अवे एंड नाउ यूर जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू कम सो दैट यू कैन गो इन फॉर योर इंटरव्यूज एंड एक्सटेम्पोर. सो दे कॉल इट अ PSA. So that the PSA and the interview is clubbed into one but ये more so like मुझे extempore लगा. I'll tell you why. तो finally मेरा turn आता है. I'm sitting and I'm pretty chill, I'm pretty relaxed at this point and then I'm just randomly talking to the professors over there and I'm normally chill कर रहे हैं मतलब I was just trying to not think about all of this as much so that I can just be free and just be myself. Then उसके बाद when I go in obviously pleasantries exchange होती है and then you have your PSA और extempore जो भी. देन उसमें ऐसा होता है कि दे हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट पेपर एंड लक बेस पे आस्क यू टू चूज. तुम चूज करोगे एंड जो भी तुम्हारा टॉपिक आया वो तुम्हारा टॉपिक है. गेट लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स लाइक 1-2 minutes आई थिंक एंड देन उसके बाद यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. तो उसमें देयर इज अ टॉपिक एंड देन देयर आर 3 questions एंड यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ योर व्यूज़. सो मेरा आया था कि इज़ बेगिंग अ बैड थिंग एंड डू यू थिंक इट शुड बी बैंड और समथिंग. तो इसके ऊपर मेरा टॉपिक था एंड आई हैड गिवन सम व्यूज़ ऑन हाउ different countries deal with the
issue of begging, so right from some country like Singapore versus India and ये सब, तो मैंने उस पर थोड़ा सा बात किया. बट अगेन मतलब आई कुड नॉट स्ट्रक्चर माई थॉट्स वेरी वेल. आई थिंक ये मेरी एक कहीं ना कहीं डाउनफॉल है, बिकॉज मैं इतना सोचती हूँ, मेरे पास आइडियाज़ भर भर के है, बट उसको शब्दों में पिरोना, उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करना इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. एंड मे बी देर चेकिंग दैट ओनली, बट ये प्रोसेस था. देन उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था, अगेन मुझे लिटरली करंट अफेयर्स का कुछ नहीं पूछा. इट वॉज ऑल बेसिस माई वर्क. एंड उनका बस एक ही कंसर्न था कि यार आपने इतना काम किया है, आप क्यों अभी MBA कर रहे हो. एंड ये मुझे पहले भी आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू में बताया था. आई थिंक इसके पहले जो मैंने डाला है वीडियो कि कैसे दिस वॉज वन क्वेश्चन दैट एवरीवन वांटेड आंसर्स टू, कि आपको अभी क्यों करना है, पहले क्यों नहीं. एंड उसमें टर्न्स आउट की थोड़ी गलती भी हुई थी. इन माई एप्लीकेशन समहाउ द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ माई अंडर ग्रेजुएशन वॉज 2016, जबकि इट इज़ 2019. तो 19 है तो थोड़ा समझ में भी आता है, बट 16 मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया तो दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट. एंड इसके ऊपर पूरा मेरा डिस्कशन गया. दे वर प्रिटी चिल. आई गॉट टू नो दैट दीज पीपल, माई पैनल्स वर बेसिकली HR एंड स्पोर्ट्स टीचर. तो मतलब ज़्यादा वो मतलब इंटेंस क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे विच इज़ मोर टेक्निकल. तो मेरा अगेन लाइक एज आई गॉट टू नो कि इट इज़ वेरी लाइक पर्सनल टू मी. एंड उन्होंने मेरा प्रोफाइल पे ऐसा चेक नहीं किया. दे हैड दिस पेपर जिसमें मेरा पूरा डिटेल्स जो भी मैंने KJ के टाइम फिल किया था, जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है इंटरव्यू के पहले, उसको उन्होंने ज़्यादा देखा भी नहीं. दे वर जस्ट स्टक ऑन वर्क. बाकी सब छोड़ो, काम की बात करते हैं, ओनली योर वर्क. सो ये बात हुई एंड दैट्स अबाउट इट. तो प्रिटी चिल था. एंड देन नीचे व्हेन आई मेट अ कपल ऑफ अदर पीपल हु आई काइंड ऑफ गॉट एक्वेंटेड टू ड्यूरिंग दिस टाइम, दो लोगों ने तो इतना कुछ बोला कि भाई हमको ऐसे बोला, ऐसे ग्रिल किया, इतना लंबा इंटरव्यू, ऐसे कौन बोलता है, ऐसे क्यों पूछ रहे थे. मतलब बहुत सारी क्वेश्चंस उनको पूछे. और मैं और मेरा एक और मतलब एक्वेंटेंस है, तो हम दोनों वर्क एक्सपीरियंस वाले, हम दोनों क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब, दोनों एकदम चिल है, हम बात कर रहे हैं. एंड द फनी थिंग इज़ कि नाउ दैट द रिजल्ट्स आर आउट, 2 राउंड्स हो चुके हैं एंड दोनों में हम दोनों वेट लिस्टेड है. एंड ये दोनों जिनकी फट रही थी, इनका कन्वर्ट हो गया. एंड आई एम लाइक भाई क्रेजी है. सो अगेन आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स, बट आई विश, आई मीन आई नो इट्स लाइक नॉट टेक्निकली पॉसिबल और फीजिबल बिकॉज आप इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हो. बट अगर एक फीडबैक रहती कि कहाँ पर यू लैग्ड या किस रीज़न से, या फिर इफ दे जस्ट टेल यू कि मार्क्स की कैसे आपका जो है इवैल्यूएट किया गया, अगर वो ट्रांसपेरेंसी रहे तो बहुत ही हेल्पफुल होता है टू एनीवन हु वांट्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. तो ये एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि ऐसा होना चाहिए हमारे सिस्टम में. बट अदर देन दैट it was pretty chill. So Welenker I have converted, but I converted their retail management. So yeah, one tip that I'll give you in terms of closing notes is that do not apply for a lot of programs, because that way it seems like you're not sure. And दूसरा they might be thinking कि you are just trying to enter Welenker in whatever means possible. I wanted to do PGDM. I should have just stuck to that, because रिटेल में व्हेन दे वर आस्किंग मी आउट क्वेश्चंस कार्निवल से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने बोला था कि अदर देन एवरीथिंग एल्स आपको क्या जानना है. तो मैंने बोला कि मुझे रिटेल का पता नहीं है कि रिटेल का लैंडस्केप कैसा है, तो ये भी मुझे समझना है. तो मे बी दे थॉट दैट इट विल बी बेटर फॉर मी टू बी इन रिटेल एंड नॉट डू PGDM जनरल. इस वजह से बाकी सबको निकाल के मेरा बस एक रिटेल ही हुआ था. एंड दैट्स अबाउट इट. KJ का तो वेट लिस्टेड ही अभी तक. सो नाउ आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट एनी हुज आई हैव टेकन अ कॉल ऑन विच कॉलेज आई वांट टू गो टू, एंड इट इज़ GIM. सो आई जस्ट होप कि बाकी सब कॉलेजेस में मेरी अगर सीट है भी तो वो पास ऑन हो, किसी को वेट लिस्ट नहीं होना पड़े बिकॉज ऑफ माई बुकिंग और लाइक माई नेम और वट एवर. सो या दैट वॉज अबाउट इट. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. ये जनरली ऐसा हुआ था ना. बोथ वेलिंकर एंड KJ सोमाया दोनों का नाम अच्छा है. वेलिंकर का 40 LP है एंड KJ का 28.25 है. व्हेन यू टॉक अबाउट द हाइएस्ट पैकेज, एंड एवरेज में दोनों टक्कर दे रहे हैं. 13 to 12.75 रिस्पेक्टिवली उनका चल रहा है. लेकिन KJ का ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक चीज़ हो जाती है. सो इफ़ यू ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, तो आई थिंक इट्स वेरी मच ऑन यू एंड हाउ यू लुक एट योर गोल, योर बीइंग एंड हाउ इट अलाइंस विद द कॉलेज. तो वो सबको देख के एक डिसीजन लेना चाहिए. बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक एंड दोनों काफ़ी अच्छे हैं इन देयर ओन सेंस. बट या मैंने सुना है कि KJ का जो है
the not being able to grow year on year जैसे वेलिंकर grow कर रहा है in terms of placements, you know, and the numbers, the big bucks. But this was my interview experience, you guys. I hope you all enjoyed this video. If you did, then definitely give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you guys super soon. Till then, take care. Bye bye.